معاشی استحکام کے لیے مشکل فیصلے کیے، اتحادی جماعتوں نے ریاستی مفاد میں اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا، چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، سعودی عرب اور یو اے ای نے بھرپور تعاون کیا، دعا ہے یہ آئی ایم ایف سے آخری معاہدہ ہو، اثار و قربانی کا جذبہ قوموں کو مشکلات سے نکالتا ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی نیوز کانفرنس۔ پی ٹی آئی دور میں نااہلی اور نالائقی سے ملکی مشکلات میں اضافہ کیا گیا، ذاتی مفادات کے لیے آئی ایم ایف معاہدے کی دھجیاں بکھیری گئی، نامئی فسادات وطن عزیز کے خلاف گھناؤنی سازش تھی، ملوث عناصر بچ نہیں سکیں گے، ملزمان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں، سازش کرنے والوں کے مکروہ چہرے بے نقاب ہو گئے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ اگلے 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت برقرار، ڈیزل کی قیمت میں ₹7.5 کا اضافہ، عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مشکل فیصلہ کرنا پڑا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ تاجر برادری اور سیاسی رہنماؤں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ نہایت خوشائند قرار دے دیا، معاہدے سے ملک میں بے یقینی کی کیفیت ختم ہو گئی، وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی خصوصی کاوشوں سے پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ممکن ہوا، تاجروں کے تاثرات۔ پاکستان کی جو ادائیگیاں ہیں اس پر بھی اس کے مثبت اثرات پڑیں گے، یہ اس گورنمنٹ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یقیناً اس کے ایک بہت بہتر اثرات ہوں گے پاکستان کی اکانومی میں، جو غیر ضروری طور پر چیزیں مہنگی ہو رہی تھی ان سب کا سرباب ہوگا۔ سب سے وزیر اطلاعات کا آزادی اظہار رائے یقینی بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ، اتحادی حکومت نے میڈیا پر کوئی قدغن نہیں لگائی، موجودہ دور میں کسی بھی صحافی کے لیے کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی، صحافی برادری کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں، مریم اورنگزیب۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج سے 4 جولائی تک جاپان کا دورہ کر رہے ہیں، جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا اور اپنے ہم منصب یوشیما ساہیاشی سے وفود کی سطح پر بات چیت کریں گے، بلاول بھٹو زرداری ایشیائی ترقیاتی بینک انسٹی ٹیوٹ میں بھی خطاب کریں گے۔ عید الاضحیٰ کا تیسرا دن، جانوروں کی قربانی کا سلسلہ آج بھی جاری، مہمانوں کی ذائقہ دار پکوانوں سے خوب تواضع، لوگ بڑی تعداد میں تفریحی مقامات کی طرف نکل پڑے۔ شہدائے پاکستان کو قوم کا سلام، عید کے پرمسرت موقع پر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو قوم کا خراج عقیدت، شہداء کے لواحقین نے اپنے پیاروں کی یادیں تازہ کیں جنہوں نے اپنا سب کچھ وطن پر نچھاور کر دیا۔ شہدائے پاکستان کو سلام، زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتی، وطن عزیز پر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو پوری قوم کا سلام عقیدت، لواحقین شہداء کے ساتھ بیتنے والے خوبصورت لمحات کو یاد کرتے ہوئے قربانی پر نازاں۔ عید کے موقع پر پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے جوانوں کا خصوصی پیغام، پاکستان اور پاک فوج کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، تمام شہداء اور ان کی فیملیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی ٹانک اور شمالی وزیرستان میں کارروائیاں، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، ہلاک دہشت گرد بے گناہ شہریوں کے قتل اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی سنگین وارداتوں میں ملوث تھے، علاقے میں کلیئرنس آپریشن۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے اونچے بھارتی ہتھ کنڈے، جھوٹے مقدمات میں نوجوانوں کی گرفتاریاں، املاک کی ضبطگی اور قبضے معمول بن گئے، مودی حکومت کا مذموم ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے عدلیہ کا بطور ہتھیار استعمال، حریت کانفرنس کا اقوام عالم سے بھارتی مظالم کی روک تھام کا مطالبہ۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں بس میں آگ لگنے سے 25 افراد ہلاک، 8 زخمی، بس ناگپور سے پونے جا رہی تھی، آگ ڈیزل کا ٹینک لیک ہونے سے لگی، زیادہ تر افراد جلنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ 5 جولائی سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان، ندی نالوں میں طغیانی اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان، رواں سال مانسون کے دوران بالائی پنجاب، آزاد جموں کشمیر اور خیبر پختونخوا میں معمول سے قدرے زیادہ بارشیں ہونے کی توقع، محکمہ موسمیات۔ برطانیہ میں T20 بلاسٹ کرکٹ سیریز، نوٹنگھم شائر کی نمائندگی کرنے والے پاکستانی سپیڈ سٹار
शाहीन शाह अफरीदी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बर्मिंघम बेयर्स के खिलाफ पहले ही ओवर में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। शाहीन शाह अफरीदी ये कारनामा सर अंजाम देने वाले पहले बॉलर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और देंगे आपको माशी मैदान से बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। IMF बोर्ड 12 जुलाई को होने वाले इजलास में पाकिस्तान के लिए $3 अरब की मंजूरी देगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने IMF से मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इत्तेहादी जमातों ने अपनी सियासत को दाव पर लगाते हुए मुश्किल फैसले किए और मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मोहम्मद नवीद असर की रिपोर्ट। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। मुआहिदे के तहत IMF स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत 9 माह में $3 अरब फराहम करेगा। IMF के मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की सरबराही में टीम ने पाकिस्तानी हुक्काम के साथ वर्चुअल मीटिंग्स की और मुआहिदे से मुतल्लिक़ अमूर तय पाए। मुआहिदे की तफसीलात बताते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम को IMF के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट का तोहफा देकर मुल्की मईशत की बहाली की बुनियाद रख दी है। अब हमें इस तरह के इक़दाम करने हैं कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो। हमने अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है दाव पे लगा दिया। नवाज शरीफ साहब ने अपना सरमाया दाव पे लगा दिया। मैंने मेरी पार्टी ने और दूसरी पार्टियां जो कोलिशन में है हिस्सा दर्जा बदर्जा सब ने अपना सरमाया गवा लिया, सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान को न सिर्फ डिफ़ॉल्ट न होने दें बल्कि पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए कड़े और कड़वे फैसले हमने किए। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका। 12 जुलाई को बोर्ड की मीटिंग होगी इंशाअल्लाह और उसमें ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट, तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फ़ौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये कोई लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, ये लम्हा फ़िक्रिया है। यकीन कर लें कि कर्ज़ों से कौमें बसती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं। ये कर्जा हमें बअमरे मजबूरी लेना पड़ रहा है और मेरी दुआ है आखिरी मर्तबा हो कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कर रहा है, उसके बाद हमें कर्जा न लेना पड़े। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम वक्त में मुआहिदे की शराइत को पूरा करने के लिए दोस्त मुल्कों चीन, UAE, सऊदी अरब और इस्लामी तरक्याती बैंक समेत हमारी टीम ने अहम किरदार अदा किया। मेरी हुकूमत की हकीर कोशिश है, वज़ीर ख़जाना की वहाँ पर हमारे इस नए सिपह सलार की बहुत ज़्यादा कोशिश है। उन्होंने आगे बढ़कर हमारी मदद की और उन ममालिक से राब्ते किए और फाइनली इस कलेक्टिव एफर्ट से अल्लाह ताला ने करम किया और इस तरह ये $3 अरब 2 सऊदी अरेबिया से और ये अपने 1 UAE से। तो मैं न सिर्फ अपनी हुकूमत के अपना जोमा का बिलावल भुट्टो साहब ने पूरी भरपूर सफारतकारी की, पूरी तरह उन्होंने डिप्लोमेसी की। उन्होंने इट्स ऑलवेज टीम वर्क, कोई अकेला जो है वो मामला तय नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तारीख में इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने IMF से मुआहिदा मुकम्मल किया था। अब फिर मेहनत से मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। कौमी यकजहती, यकसुई और शबाना रोज मेहनत, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कौमों को मुश्किलात से निकालते हैं और कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत ने विरसे में मिलने वाले मुआशी बहरान के खात्मे के लिए कई मुश्किल फैसले किए। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने वसाइल और सलाहियतों पर इन्हिसार करना होगा। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में मनसूबाबंदी से आगे बढ़ना पाकिस्तान का रास्ता रोका गया। चेयरमैन PTI ने ज़ाती मफादात के लिए IMF के मुआहदे की धज्जियाँ बिखेरी और इक़्तिदार की हवस में मुल्क के दिवालिया होने की मुहिम चलाई। साजिश करने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब हो गए। रिपोर्ट करेंगे शाहरुख शफी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था। मुल्क से लोड शेडिंग खत्म हुई, मोटरवेज के जाल बिछाए गए, CPEC मंसूबों पर तेजी से काम हुआ, मगर फिर धांधली से एक शख्स को कौम पर मुसल्लत किया गया जिसने दुश्मनों से बढ़कर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 9 मई को पूरे मुल्क में गिराव जलाव हो रहा है। कायद-ए-आज़म के घर को जलाया गया, शहीदों के मंजिलों को तोड़ा गया। एक साजिश थी, जाल बुना हुआ था,
باہر کے جو سازشوں کے ساتھ اندر سازشوں کے ساتھ مل کر کہ پاکستان کو معیشت کو تباہ کر دینا ہے اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے. پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرنے کے لیے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا, بیانیے بنائے گئے دن رات ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر, پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. یہاں تک کہا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. پیرس میں IMF کی MD میرے پاس آئی کہ پرائم منسٹر, مجھے سری لنکا کے صدر نے کہا ہے کہ سری لنکا بہت بری حالت سے گزرا ہے, خدا کر کے پاکستان کو ان حالات سے کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آپ بتائیں کہ یہاں پر دوست نما دشمن پاکستان کو دوچار کرانا چاہتے سری لنکا کے حالات سے, اور سری لنکا کا صدر جو ہے وہ دوست بن کر پاکستان کے لیے ان کو IMF کے MD کو اچھے الفاظ کہہ رہا ہے. اس کے بعد ملک دشمنی کی بدترین مثال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ قرض لینا مجبوری ہے, قرض لے کر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے جامع پلان بنایا ہے. یہ قرضوں کی زندگی ختم ایسے نہیں ہوگی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, وہ راستہ اپنانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ قدرتی وسائل دیے ہیں, اذہان دیے ہیں, آپ کو سب علم ہے. لیکن ہم نے پچھلے دنوں ایک میکنزم بنایا ہے اس معاشی ترقی میں جو بہت جلد جو فیکٹر کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے زراعت. اسی طریقے سے ہماری جو معدنیات ہیں, IT انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ وہ ایک میدان ہے جہاں پر ہماری جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی, اس IT کے شعبے میں بے پناہ پوٹینشل ہے. اس میں ہم اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ 4-5 اہداف ہیں جس کے لیے ہم نے ایک ماسٹر پلان بنایا ہے. اگر ہم نے تم اور میں کو نہ چھوڑا اور ہم نہ بنے تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا. تو میرا ایمان ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا, ہماری پھر ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. اس موقع پر وزیر اعظم نے صحافیوں کے سوالوں کے تفصیل سے جوابات بھی دیے. ایک سوال کے جواب پر وزیر اعظم نے کہا کہ حکومتی کفایت جاری مہم کے تحت اخراجات میں کمی آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف بہت جلد وطن واپس آئیں گے اور ملک کو ترقی و خوشحالی کی منزل پر گامزن کریں گے. شاہ رخ شفیع, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ IMF سے معاہدے کے دوران بہت سی مشکلات آئیں, تاہم مشترکہ کاوشوں سے معاہدہ طے پایا اور مایوسی پھیلانے والے ناکام ہوئے. تفصیل بتا رہے ہیں طاہر جعفری. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں IMF کے ساتھ صرف ایک معاہدہ مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور حکومت میں مکمل ہوا. انہوں نے کہا کہ IMF سے اسٹینڈ بائی معاہدہ قوم کی بڑی کامیابی ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں. وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF بورڈ میٹنگ کے بعد پاکستان کو فنڈز جاری ہو جائیں گے. اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ یہ صرف 9 مہینے کے لیے ہے. اس کا ٹوٹل ویلیو $3 بلین ہے. پرائم منسٹر صاحب کی بہت دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جو اپنا لیڈ رول ادا کیا اس سارے پروسیس میں, اور آج ہم SBA سائن کر چکے ہیں. ایک جو ریویو پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا تھا وہ 2013-16 کا تھا, اور پاکستان نے IMF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا. نواز شریف صاحب کی جو سربراہی میں اس وقت ہم جہاں پہنچے تھے, لوسٹ انفلیشن 2% فوڈ, 4% CPI 4 سے کم, بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف ساؤتھ ایشیا, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ, 53,000 آج تک نہیں پہنچ سکے انڈیکس. وزیر خزانہ نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں ملک کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا گیا اور کچھ لوگ ملک کے دیوالیہ ہونے کی گمراہ کن افواہیں پھیلاتے رہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے معاشی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کیے, پاکستان کو دوبارہ 24ویں معیشت بنائیں گے. ڈان لیگ سے وہ ڈرامہ شروع ہوا اور کرتے کرتے پھر وہ پاناما پہ ختم ہوا, اور پھر جو ہوا اس کا پاکستانی قوم نے بہت بڑا ایک قیمت ادا کی. 100 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ چھوڑ کے گئی ہے پچھلی حکومت, اور ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز وہ جو ایکسٹرنل ہے $130 بلین کا چھوڑ کے گئی. لیکن جو سٹاک مارکیٹ کی جو میاں نواز شریف کے وقت جو اس کی ویلیویشن تھی $100 بلین سے تجاوز کر گئی تھی, آج وہ $22 بلین. 24th اکانومی میاں نواز شریف نے چھوڑی تھی دنیا میں گلوبل, وہ 47th ہمیں ہینڈ اوور کر کے گئے پچھلی حکومت. اس کو واپس 24th کی طرف لے کے جانا ہے. ہم نے ڈکلائن کو روکا ہے, اسٹیبل ہے اس وقت. ناؤ وی ہیو ٹو ٹرن ٹورڈز گروتھ, اور اس کے لیے جو پرائم منسٹر نے آئیڈینٹیفائی کیے آپ کے سامنے, ایگریکلچر, IT, منرلز, انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اسحاق ڈار نے کہا کہ ملکی معیشت قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, مقامی وسائل پر انحصار بڑھائیں گے تاکہ ملک خود انحصاری کی جانب گامزن ہو سکے. طاہر جعفری, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے آزادی اظہار رائے یقینی بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے میڈیا پر کوئی قدغن نہیں لگائی. لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نیوز کانفرنس کے دوران ایک سوال پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ موجودہ دور میں کسی صحافی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی گئی. صحافی برادری کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں.
और मुल्क भर की ताजिर बरादरी सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान का IMF के साथ होने वाले माहदे को निहायत खुशाइंद करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस माहदे से मुल्क में बेयकीनी की कैफियत ख़त्म होगी, कारोबारी और बिजनेस कम्यूनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस माहदे के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम खुसूसी काविशों से पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान स्टाफ लेवल माहदा मुमकिन हुआ। खुशखबरी मिली है कि IMF का पाकिस्तान के साथ माहिदा हो गया। ये ईद के बाद बड़ी खुशखबरी है। इस वक्त जो हालात थे इकोनॉमी के, जो क्राइसिस था, उसमें शॉर्टेस्ट वे और बेस्ट वे जो निकलने का था वो IMF ही था। आपके जितने भी डोनर्स हैं, आपका वर्ल्ड बैंक है, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आपका पेरिस क्लब है, आपके दोस्त ममालिक जो हैं, उन सब से IMF की सर्टिफिकेशन के बाद आपको पैसे आने छोड़ जाएंगे। ये मुआहदा इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इसके लिए इसकी वजह से अब दुनिया से जो हमारा एक डेड लॉक आ चुका था उसको साफ करने में और कारोबार के मौके पैदा करने में और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के में बहुत मदद मिलेगी। इसके होने से ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेंटीमेंट है उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपकी जो करेंसी है, जो डॉलर इंटरबैंक में है, वो नीचे आएगा और इसके बाद बहुत सारे मुल्क जो IMF के मुआहदे का इंतजार कर रहे थे वो अपने जो पैसे हैं वो रिलीज कर देंगे। इन्फ्लेशन भी डाउन होगी, एक्सचेंज रेट भी डाउन होगा और इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। इससे एक और फ़ायदा हो सकता है कि हमको एक्सपोर्ट सरप्लस भी होगा और हम इंपोर्ट में जो कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही थी वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। IMF के प्रोग्राम में जैसे हम दाखिल हो जाएंगे उसके बाद और भी बहुत सारे डोनर्स हैं जिनकी तरफ से हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी और उसके बाद आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता महंगाई में भी कमी आएगी और जो पेट्रोल का रेट है वो भी कम होगा। IMF के साथ ही हमारा जो मुआहदा हुआ है वो एक बहुत खुशाइंद बात है और इसका क्रेडिट हमारी वफाकी हुकूमत को जाता है। पाकिस्तान के जो है माशी हालात ठीक होंगे, जो मईशत का पहिया रुका हुआ है वो चलेगा और उसके अलावा जो बैरूनी कर्जा जात हैं उनकी अदायगी में भी ये बड़ा मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट का मुआहदा हुआ है, ये बहुत अच्छा फैसला है। इसमें मुआशी हालात भी ठीक होंगे और महंगाई भी कम होगी और मुल्क के हालात भी ठीक होंगे। अब मुल्क की हालात ठीक होंगे तो अवाम खुशहाल होगी। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ इकनॉमिक प्लान्स पे काम कर रही है हमारी हुकूमत, जिसके नतीजे इंशाअल्लाह जल्द नजर आएंगे। मुल्क भर की तरह सूबा बलूचिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान और IMF माहदे को नहायत ही अहम और खुशाइन करार दिया जा रहा है। खुसूसन बलूचिस्तान के सियासी और बिजनेस कम्यूनिटी ने मौजूदा मुश्किल हालात में इस अहम माहदे का क्रेडिट मौजूदा मखलूक वफाकी हुकूमत को दिया है। देखिए जी, ये जो $3 अरब का माहिदा हुआ है इसमें काफ़ी चीज़ों पे बेहतरी आएगी और डॉलर की कीमत में कमी बेशी आएगी और बाकी जो महंगाई की सूरत हाल आजकल चल रही है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। डॉलर पे प्रेशर तो वो ख़त्म होगा और इकानमी को एक इस्तेहकाम मिलेगा। पाकिस्तान की जो अदायगियाँ हैं उस पर भी इसके मुस्बत असरात पड़ेंगे। ये इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यकीनन इसके एक बहुत बेहतर असरात होंगे पाकिस्तान की इकानमी में। जो गैर ज़रूरी तौर पर चीज़ें महंगी हो रही थी उन सब का सरेबाब होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट ये कि अगले 9 महीने के लिए नए हुकूमत तक के आने के लिए डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा है वो टल गया है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में जो पाकिस्तानी रुपीज़ की वैल्यू है वो अप्रिशिएट होने और डॉलर की कदर कम होने का इम्कान है और इसी तरह से अगले 6 से 9 महीने में महंगाई भी थोड़े कम होने का इम्कान है। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज से 4 जुलाई तक जापान का दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा और अपने जापानी हम मनसब योशिमा साहायाशी से वफूद की सतह पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में भी खिताब करेंगे जो जापान का एक मशहूर थिंक टैंक है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा जापान में पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत के दरामद से मुतालिक मुमताज़ कारोबारी अफराद और इदारों की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर हुकाम और एग्जीक्यूटिव से भी बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का दौरा जापान तवील वक्फे के बाद क़यादत की सतह पर राबतों की बहाली का इशारा देता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जापानी हुकूमत की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इस बात के वाज़ेह सबूत हैं कि चेयरमैन PTI गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा हैं। शेखुपुरा में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान को वो नुकसान न पहुंचा सका जो इंतशार पसंद लीडर और उसके कारकुनों ने 9 मई को पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू कर रही है जहां रुका था। उन्होंने कहा कि IMF माहदे से मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होगी और मुल्क को डिफ़ॉल्ट देखने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। और मुल्क भर में ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज़ सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। लोग अपने प्यारों और मसाकीन में गोश्त तकसीम कर रहे हैं। घरों में मेहमानों की दावतों का सिलसिला भी जारी है। कल के मेहमान आज के मेज़बान हैं। मटन कोरमा, बिरयानी, शामी कबाब, निहारी और पाए बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर शहरियों ने तफरीह गाहों का भी रुख किया है। बच्चे अपने मनपसंद झूलों से खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। और ईद के तीसरे रोज़ ननकाना साहब के शहरियों ने भी तफरीही मकामात का रुख कर लिया है और अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजार कर ईद की खुशियों का मज़ा दोबाला कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे ननकाना साहिब से जावेद अहमद माविया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और मेहमानों की मेहमान नवाजी के बाद ननकाना साहब के शहरियों ने भी मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख किया, जहाँ उन्होंने जिप लाइन और कश्ती रानी के मजे लिए। हर किसी ने अपने अपने अंदाज में ईद की खुशियों का मजा दोबाला किया। 2 दिन तो कुर्बानी में गुजर गए, आज तीसरे दिन हम ननकाना लेक रिजॉर्ट में बच्चों को सैर करवाने के लिए आए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन हम दोस्तों के साथ इधर आए हैं सैर तफरीह के लिए। ये ईद की खुशियां हैं वो मनाने के लिए आए हैं। शहरियों का कहना है कि खुशगवार मौसम में अपने प्यारों के साथ तफरीह मुकामात पर आने का अपना ही मजा है। बच्चों ने चटपटी अशिया के साथ साथ झूलों के भी मजे लिए और खूब अल्लाह गुल्ला किया। मौसम अच्छा था, बारिश हुई थी, इसलिए मैंने कहा बच्चों को भी लेकर चलते हैं और खुद भी एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा गुजर रहा है टाइम इधर। पार्क भी बड़ा खूबसूरत है, इसमें हम अब बच्चों के साथ ही आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी फैमिली की तरफ से अपने तमाम मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मम्मा पापा से जिद की मुझे रिजॉर्ट लेके आओ, मेरे मम्मा पापा मुझे रिजॉर्ट लेके आए, मुझे बहुत मजा आया। मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ, मैंने गोलगप्पे खाए, मैंने आइसक्रीम खाई, मुझे बहुत मजा आया। शहरी तफरीह मुकामात पर गुजरे इन यादगार लम्हात को कैमरे की आंख में भी महफूज करते रहे। ईद के पूर्व मुसर्रत मौके पर अपने प्यारों के साथ गुजरा वक्त हमेशा याद रहता है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। उधर मलका कोहसार मरी में रावलपिंडी पुलिस ने खुसूसी सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम किए हैं। पुलिस के सीनियर अरकान सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि मलका कोहसार में ईद के मौके पर सयाहत के लिए आने वाले लोगों की जान और माल की हिफाजत और ट्रैफिक की बिला ताअत्तुल रवानी को 24 घंटे यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर 1000 से ज्यादा एहलकार और अफसरान ड्यूटी दे रहे हैं। SSP ऑपरेशंस ने सीनियर अफसरान के हमला टोल प्लाजा से मरी माल रोड तक और दीगर इलाकों का दौरा भी किया। ईद उल अज़हा के मौके पर सक्खर शहर में सफाई के इंतजामात को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। नौमंतखब मेयर और काउंसलर्स ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। इस हवाले से देखेंगे सक्खर से मलिक इमरान शाहिद की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के मौके पर शहर भर में सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए सक्खर म्यूनसिपल इंतजामिया और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इंतजामिया ने खुसूसी इक़दाम किए हैं। नौ मुंतखब मेयर अरसलान अहमद शेख ने मुंतखब चेयरमैनों और काउंसलर्स के हमरा मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हुकाम को हिदायत की कि शहर में सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। अरसलान अहमद शेख ने बताया कि शहर भर में ईद उल अज़हा के मौके पर सेहत और सफाई के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सड़कों को जरासीम कुश अद्वियात से धोया जा रहा है, जबकि जरासीम कुश स्प्रे भी किया जा रहा है ताकि किसी किस्म की बीमारियां ना फैलें। कचरा उठाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। शहर भर में 25,000 से ज्यादा प्लास्टिक बैग्स तकसीम किए गए हैं, जिनमें आवाम को हिदायत की गई कि आलाइशें उनमें डालें। आवाम से अपील की जाती है कि सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया से ताउन करें। जगह जगह आलाइशें फेंकने के बजाय फराहम किए जाने वाले प्लास्टिक बैग में डालकर मखसूस मकामात पर रख दें ताकि बर वक्त उन्हें उठाया जा सके। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। खबर देंगे आपको टांग से, जहां तवील बदमनी के बाद तारीख में पहली मरतबा सियाहती मकाम गोमलजाम डैम को आवाम के लिए खोल दिया गया है। इलाके में FC साउथ के ताउन से 3 रोज़ा अमन मेले का इनेकाद किया गया है, जिसकी तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे जाफरान मयानी।
جی بہت شکریہ. اس وقت میں موجود ہوں ٹانگ کے سیاحتی مقام گم الزام ڈیم پر. جی ہاں، جو طویل بدامنی کے بعد گم الزام ڈیم کو بالآخر عام عوام کے تفریح کے لیے کھول دیا گیا ہے. ایف سی ساؤتھ کی جانب سے یہاں پر امن میلے کے نام سے میلے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے. اس میلے میں والی بال، باسکٹ بال، کرکٹ اور فٹ بال کے علاوہ یہاں پر مقامی کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں. یہاں پر سیاحوں کو گم الزام ڈیم کی سیر کرانے کے لیے کشتی رانی کا بھی بندوبست کیا گیا ہے. سیکورٹی کے حوالے سے اگر میں بتا دوں تو یہاں پر سیکورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں. جی ادھر بلوچستان کے خوبصورت ساحلی شہر گوادر کے کوہ باطیل کی چوٹی پر عید میلہ منانے کا صدیوں سے جاری روایت آج بھی زندہ ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی کوہ باطیل کی پرفضا مقام پر عید کا میلے کا اہتمام کیا گیا. عید میلے میں بچوں سمیت ہزاروں لوگوں نے شرکت کر کے انٹرٹینمنٹ کے مختلف پروگرامات سے محظوظ ہوئے. میلے میں بلوچی روایتی رقص، میوزیکل شوز، سٹیج ڈرامے اور بچوں کے لیے ذہنی آزمائشی سوالات شامل کیے گئے تھے. صوبہ بلوچستان میں بھی عید الاضحیٰ کے تیسرے روز مقامی لوگوں کے ساتھ ملک بھر سے آئے سیاحوں نے بھی صوبے کے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا ہے. مزیدار کھانوں کے ساتھ ساتھ صوبے کے روایتی میوزک سے بھی لطف اندوز ہوا جا رہا ہے. مزید تفصیل پشین بلوچستان سے پی ٹی وی کے نمائندے روح اللہ خان کاکڑ سے. عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی لوگوں نے بڑی تعداد میں تفریحی مقامات کا رخ کیا. کنج غیب، بند خسر خان ڈیم اور اسی طرح بلند ترین کن پہاڑ خوبصورت سیاحتی مقامات اپنی دلکشی کے باعث سیاحوں کا توجہ کا مرکز ہے. کن پہاڑ ایک خوبصورت وادی ہے، ایک خان میں ترزی سے شمال کی طرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہاں کا موسم انتہائی خوشگوار اور شدید گرمی میں بھی ٹھنڈک فراہم کرتا ہے، جہاں پر وہ قدرتی حسین نظاروں کے مزے لے رہے ہیں. سیاحوں نے ڈول کی تاپ پر روایتی اترن بھی اور دل فریب خوبصورت بہترین مناظر نہ صرف اندرونی بلوچستان بلکہ پورے پاکستان سے سیاحوں کو متوجہ کرتے ہیں. رولا کا کارڈ، پی ٹی وی نیوز، پشین. پاکستان اور پاک فوج کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. وطن اور امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے ایف سی جوائن کی تمام شہداء اور ان کے فیملیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. عید کے موقع پر پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے جوانوں کا خصوصی پیغام. عزیز پر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو پوری قوم کا سلام عقیدت. مل کے جب عید مناتے ہیں تو اس میں خوشی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو بعد میں جب وہ 1 جنوری 2019 کو وہ شہید ہو گیا، اس کے بعد آج تک ابھی تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. تو ہر سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، اس کے بغیر بھی منا رہے ہیں. یاد تو آتی ہے، اس کی یاد بھی کرتے ہیں، لیکن عید والا دن جو ہے بڑا مشکل گزرتا ہے. وہ اکثر مجھے یہی کہتا ہوتا تھا کہ پاپا میں نے آپ کی طرح فوجی بننا ہے، میں نے آرمی میں جانا ہے. جب بھی گھر آتا تھا تو یہی اس کی زبان پہ ہوتا تھا کہ میں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی. مجھے اس چیز پہ بہت فخر ہے کہ میرے بیٹے نے اپنی جان قربان کی ہے، لیکن اپنے وطن پہ آنچ نہیں آنے دی. عید آتی ہے، کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے تو اکیلے کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کوئی مزہ ہی نہیں کسی بھی چیز کا. تو شکر ہے مالک کا جس حال میں بھی رکھے، لیکن ان کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا. قربانی خود کی تھی وزیرستان جانے سے پہلے، اور اس کے بعد سے پھر میں اب کر رہی ہوں. بہت ایسے برا لگا ہے کہ
ऐसे नहीं करना चाहिए। यही तो है जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और इन्हीं की तस्वीरों को आप जला रहे हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना कर सके। ये ऐसा कदम उठाते हुए 100 बार सोचें। जिन्होंने ये काम किया उनको कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि आइंदा वो ऐसा कदम ना उठाए। छुट्टी आंदा बड़ा शौक ज़ौक मिलता हा, मुहब्बत प्यार प्यूं बादी बड़ी खिदमत करता हा। बच्चा मेरा शरीफ हा, दिलेर हा और मुहब्बत नाल सारे को बड़े छोटे को इकट्ठा बिठा के खाना खवेंदा हा। मेरे को बड़ा फखर है, मान है कि मेरा पुत्र शहीद है, शहादत रुतबा बात। मेरे अब्बू जब भी ईद पर आते थे हमें फ़ोन करके बता देते कि आप तैयारियां करें, हम आ रहे हैं। फिर हमारे अब्बू आकर पहले हमें मिलते थे, बहुत याद आती है। फिर भी 1-2 दिन पहले हमारे अब्बू ने फ़ोन किया था कि मैं आऊँगा, हम इकट्ठे शॉपिंग करेंगे, मगर एक रात फ़ोन किया था और दूसरे दिन ही इतला आ गई थी कि वो शहीद हो चुके हैं। शहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। ईद के मौके पर शहदा के लवाहिकीन ने अपने प्यारों की यादें ताज़ा की जिन्होंने अपना सब कुछ वतन पर निछावर कर दिया। शहदा के लवाहिकीन अपने प्यारों के लिए क्या जज्बात रखते हैं, आपको दिखाते हैं। सुबह सुबह बेल बजी, मैंने कहना इफ्तिखार आ, सब खुश होते। कलेजी पसंद थी, शामी कबाब पसंद थे और वो क्या नाम सीख कबाब, ये सारी चीजें पसंद थी। ईद पे मैं कहती बेटा घर आओगे, कहता अम्मी आपके साथ तो बहुत की, अब मैंने अपने जवानों के साथ ईद करनी मेरी जरूरी है। ईद से फारिग होने के बाद जब हम घर में आते थे उस वक्त कुर्बानी का जानवर तैयार होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दत से कुर्बानी अदा कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही होती थी कि वो अपने हाथ से कुर्बानी की जानवर को ज़िबा करें। आज फिर वही जी चाहता है कि काश आज कल नसाब होते, फिर दोबारा वो अपना इस गोश्त को तकसीम करते। ईद कुर्बान जब हम जानवर लेकर आए तो कुर्बानी के वक्त ऐसा हुआ कि भाईजान का दिल नहीं था कि हम उस जानवर को कुर्बान करें। तो तकरीबन मैंने ये देखा कि भाईजान की आंखों में आंसू थे जानवर को कुर्बान करते हुए। तो ये एक ईद का ऐसा वाकया है कि जो मैं कभी भुला नहीं सकता। 9 मई का दिन हमारे लिए एक इंतहाई दर्दनाक और अजियतनाक दिन है। इस दिन जो है शोहदा के खून की बहुत बेहुरमती की गई और हम ये चाहते हैं कि वो तमाम लोग जो इस वाक़े के जिम्मेदार हैं उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। आपकी जिंदगी एक लम्हे में बदल जाती है, पूरी की पूरी। आप यानी कि सब कुछ एक लम्हे में जैसे ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ का एज अ मुस्लिम शुक्र अदा करना कि अल्हम्दुलिल्लाह के वो मकाम भी हासिल हुआ है। पता मेरे में उस टाइम पे इतनी हिम्मत कैसे आई कि मैंने अल्लाह के हजूर सजदा करके उनकी इस कामयाबी पे भी शुक्र अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांग और शिमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन किए। फायरिंग के शदीद तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक जिला टांग के इलाके मंजई में फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, जबकि शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिजमक में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मुलविस थे। इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इलाका माहिदीन ने दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को सराहते हुए भरपूर ताउन के अज़्म का इयादा किया है। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की दीगर आलमी तंजीमों की तवज्जो मकबूजा वादी की बिगड़ती हुई सूरत हाल की जानिब मबजूल कराई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने अपने अलग अलग बयानात में मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कश्मीरी सियासी नज़रबंदों की हालत ज़ार को उजागर किया है और उनकी रिहाई का मुतालबा किया है।
उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि कश्मीरियों को न सिर्फ झूठे इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उनके घरों, जायदादों और ज़मीनों पर कब्जा करके उन्हें जब्त भी किया जा रहा है। KMS की जानिब से श्रीनगर में जजेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अदलिया को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके में जजों की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का कोई इख़लाक़ी जवाज़ नहीं, जबकि हकीकत यह है कि जब कश्मीरियों को सज़ाएँ देने की बात आती है तो भारतीय अदलिया कानून और इंसाफ के तमाम उसूलों को नज़रअंदाज कर देती है। आलमी मंजरनामे में अफसोसनाक खबर आपको देंगे भारतीय रियासत महाराष्ट्र से, जहां पर बस में आग लगने से कम 25 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक बस नागपुर से पुणे जा रही थी जिसमें 33 अफराद सवार थे। आग डीजल का टैंक लीक होने के बायस लगी और ज्यादातर अफराद जलने की वजह से हलाक हुए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ब्राजील की फेडरल इलेक्टोरल कोर्ट ने साबिक सदर जेयर बोल्सोनारो को 8 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया है। अदालत के फैसले के मुताबिक बोल्सोनारो 2030 तक इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फेडरल इलेक्टोरल कोर्ट के 7 में से 4 जजेस ने ताकत और मीडिया के गलत इस्तेमाल पर उन्हें मुजरिम करार दिया। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने गुज़िश्ता साल होने वाले इंतखाबात के नताइज उलटने के लिए मुल्क गिर पुरतशद्दुद तहरीक का आगाज़ किया, जिसके नतीजे में ब्राज़ीलिया में सरकारी इमारतों पर उनके हज़ारों हामियों के हमला आवर होने से बोल्सोनारो की इल्ज़ामात की तरदीद हुई। उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का इरादा रखते हैं। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में हंगामे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मुश्तइल मुजाहिरीन ने सैकड़ों गाड़ियों और अमलाक को आग लगा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस स्टेशन पर पेट्रोल बमों से हमले किए गए। दुकानों और कारोबारी मराकज़ में लूटमार और जगह जगह झड़पें जारी हैं। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मुजाहिरों को कुचलने के लिए 45,000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। रुख करेंगे एक मरतबा फिर कौमी खबरों का। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, रिश्तेदारों, मसाकीन और मुस्तहिक अफराद में गोश्त की तकसीम के बाद अगला मरहला ईद दावत का आता है। इस मौके पर खानदान के दीगर अफराद और यारों दोस्तों के साथ मिलकर बारबेक्यू महफिलों का खास एहतमाम किया जाता है। एक ऐसी ही पुरलुत्फ महफिल का अहवाल मुल्तान से सादिया शहबाज की रिपोर्ट में। ईद के दिनों में शाम होते ही दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार घरों की छतों, डेरों, सेहन में बारबेक्यू पार्टियों का एहतमाम करते हैं। मिसालों से भरपूर गोश्त, दहकते कोयले और कबाब और तिक्कों की भीनी भीनी खुशबू माहौल में रच बस जाती है। मुल्तान की ये फैमिली भी दीगर फैमिलीज की तरह हर साल टिक्का, बोटी, कबाब, रोश और दीगर पकवान से लुत्फ अंदोज होती है। इस पार्टी में शरीक खवातीन, मर्द और बच्चे अपनी पसंद की गोश्त, रान और चांप खाना चाहते हैं। इनका कहना है कि रान रोस्ट और सीख कबाब खाए बगैर ईद का मजा ही दुबाला नहीं हो सकता। ईद के दिन अगर बारबेक्यू ना हो तो बिल्कुल मजा ही नहीं आता। ईद के मौके पे हम बहन भाई इधर मिल के इंजॉयमेंट करते हैं, एक ही छत के नीचे, बजाय कि हर एक के घर जाएं, दूसरे घर जाएं, एक ही जगह हम इकट्ठे होते हैं क्योंकि बहन भाइयों में माँ बाप का प्यार नज़र आता है। स्पेशली एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पर आपके तमाम दोस्त, रिश्तेदार जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और आप एक दूसरे के साथ जो है ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हो। ये दिन ही ऐसा है। ईद के मौके पे इस तरह की ज़ियाफ़तों के एहतमाम से रिश्तेदारों, दोस्तों में कुर्बतें मज़ीद बढ़ जाती हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक बारबेक्यू बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि गोश्त अच्छी तरह से पका हुआ हो, क्योंकि कच्चा गोश्त इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। गोश्त प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन से भरपूर होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए अहम जुज़्व हैं। ईद के मौके पर बारबेक्यू पार्टीज का एहतमाम हमारी रिवायात का अहम हिस्सा है, लेकिन माहिरीन सेहत का कहना है कि ज़्यादा गोश्त खाना इंसानी सेहत को मसाइल से दोचार कर सकता है। सादिया शहबाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और ईद उल अज़हा के तीसरे दिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद पीर महल के शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया और ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए बच्चे पार्कों में खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे नौमान चौधरी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद आज शहरियों की बड़ी तादाद जो है उन्होंने पार्कों का रुख किया। यहाँ पर आकर जो है वो अपनी फैमिली के साथ खूब हुल्ला गल्ला किया जा रहा है। यहाँ पर चटपटे खानों के साथ और झूले जो हैं वो और स्लाइड के साथ जो है खूब जो है वो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं।
आज हम पार्क आए, कुर्बानी के बाद हमें बहुत मज़ा आया। आज हमने बहुत से खाने भी खाए और बहुत से झूले लिए। ईद का दूसरा दिन है, हम पार्क में आए हैं, हमने झूले लिए हैं और गोलगप्पे भी मज़े मज़े से खाए हैं। हम पार्क में आए हैं, एंजॉय किया है, गोलगप्पे भी खाए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। हम आज पार्क गए थे, बड़ा मज़ा आया था कुर्बानी के बाद और हमने एंजॉय किया, बहुत चीज़ें खाई, चटपटे बच्चों के साथ एंजॉय की और एंजॉय करने आए हैं। असल ईद तो बच्चों की शरारतों में छुपी हुई होती है, जबकि यहाँ पर पीर महल में बेंजी पार्क में बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो झूले, स्लाइड्स और मुख्तलिफ जो खाने हैं चटपटे, बर्गर, शवारमे, उनके साथ यहाँ पर खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मोहम्मद नुमान चौधरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पीर महल, टोबा टेक्सिंग। खबर देंगे आपको चिन्नौर से, जहां ईद कुर्बा के तीसरे रोज कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम है। ईद कुर्बान का दिन किचन में गुजारने के बाद ईद के दूसरे रोज़ ख़वातीन, मर्दों और बच्चों ने दरियाए चनाब और तफरीही पार्कों का रुख कर लिया है, जहां पर वो कश्तीरानी, रेलगाड़ी और झूलों के साथ साथ अपनी मनपसंद मज़ेदार पकवान भी खा रहे हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पार्कों में हर तरफ गहमा गहमी है। ईद कुर्बान के पुरमसरत मौके पर बच्चे बड़े सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चा पार्टी मुख्तलिफ किस्म के झूले झूल कर लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। कोई रिश्तेदारों को मिलने जा रहा है तो कोई दावतें खाने में मसरूफ़ है। पार्कों में आने वाले बच्चे और नौजवान ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए हल्ला गुल्ला करते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकपतन के शहरियों ने भी तफरीही मकामात और पार्कों का रुख कर लिया है। इससे तफरीह गाहों की रौनकें मजीद बहाल हो गई हैं। अब्बास अली आरफी की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा के तीसरे और आखिरी रोज़ पाकपतन के शहरियों ने तफरीही मकामात और पार्कों का रुख कर लिया है। दूसरे शहरों से छुट्टियों पर घर आए अफराद भी अपनी फैमिलीज के साथ पार्कों और तफरीही मकामात पर आए हुए हैं, जिससे तफरीह गाहों की रौनकें बहाल हो गई हैं। पार्क में आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। हमने झूले लिए हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमने बहुत इंजॉय किया और हम खेली भी जा रहे हैं और सब हम दोस्त इधर इकट्ठे होकर आए हुए हैं। बच्चे जो है पार्क का कह रहे थे जब दादाबू पार्क जाना है तो मैं बच्चों को पार्क लेके आया हूँ। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। हम पार्क में आए हैं, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा है, हम खेल कूद रहे हैं, मेरे यहाँ पर दोस्त भी आए हैं। हम पार्क में आए हुए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ईद से पहले जानवरों की देखभाल करने वाले बच्चे अब खेल कूद में मसरूफ़ हैं। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और ख़ुसूसन दूसरे शहरों से छुट्टियों पर आए हुए अफराद अपनी फैमिलीज़ के साथ पार्कों और तफरीही मकामात में खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मगरबी कीनिया में सड़क हादसे में कम अज़ कम 48 अफराद हलाक हो गए हैं। ये हादसा कंटेनर ट्रॉलर के मुतादिद गाड़ियों से टकराने और उलट जाने के बायस पेश आया। कीनिया रेड क्रॉस के मुताबिक ट्रॉलर 6 से ज़्यादा गाड़ियों से टकराने के बाद पैदल चलने वालों पर चढ़ दौड़ा। गुज़श्ता साल भी वस्ती कीनिया में मुसाफिर बस दरिया में गिरने से 34 अफराद हलाक हो गए थे। सिंध के गवर्नर कामरान खान टसोरी ने कहा है कि गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं और उनके मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशां हैं। आवाम के लिए मुफ्त हेल्थ कार्ड का इजरा करेंगे। कराची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन मुलाजमीन की तनख्वाह 35 से 40 हज़ार है, ईद के बाद उनके लिए मुफ्त हेल्थ कार्ड का इजरा किया जाएगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि इस मुफ्त हेल्थ कार्ड के अखराजात मुखय्यर हजरात के ताबुन से किए जाएंगे और हेल्थ कार्ड के जरिए 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस मुफ्त की जाएगी। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि कम आमदनी वाले अफराद हेल्थ कार्ड से शहर के अच्छे अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे। उधर अहमदपुर सियाल में मौजा सदकाना मराली के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिसके बायस बस्ती लपरवाह वाली दरिया के कटाव की जद में आ रही है। इस हवाले से तफसील बता रहे हैं तनवीर हुसैन। अहमदपुर सियाल में दरियाए चनाब में पानी में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से यूनियन काउंसिल रंजीत कोट के मौजा सदकाना मिराली की बस्ती लुपरामा वाली में दरिया का कटाव जारी है। बस्ती के नजदीक साबका दौरे हुकूमत में बनाया जाने वाला सिपर बंद भी इस आबादी को दरिया के कटाव से नहीं बचा सका। यही वजह है कि कटाव ने अपना रुख बस्ती लुपरामा वाली की तरफ कर लिया है, जिसकी वजह से बस्ती के मकीनों में तशवीश पाई जाती है और हमें इसका कोई फायदा भी नहीं है। हमारे घर भी गिर गए हैं और भी लोगों के गिरे हैं। सिपर बंद दा फायदा ही कोई नहीं जी, ढाल आई वेंदा सिपर जी अग्गा थोड़ा होर वाद वेंदा तो वाद सानू फायदा है। सिपर उन्हें बताया कोई नहीं, उन्हें उठाए मोड़ पवाते ते पीछे हटा छोड़े। जी बहुत नुकसान है,
फायदा कोई नहीं होया। रकबे साढ़े ढाह गए, मकान ढाह गए, 100 फुट अगा न टुरन सानू नहीं रहन देंदा। अहले देह ने एहतजाज करते हुए कहा है कि मुतअद्दिद मकानात कटाव की वजह से दरिया बुर्द हो चुके हैं और आबादी को मजीद नुकसान भी पहुंच रहा है। दरिया के इस कटाव को अगर ना रोका गया तो पूरी आबादी इसकी लपेट में आ सकती है। तनवीर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, अहमदपुर सियाल। और महंगाई के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुर्बानी सब के लिए के हवाले से खुसूसी मुहिम, जिसके तहत शहर भर में कायम 300 मराकज़ में ईद दस्तरखान सजाया गया है। अली गुल रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से कायम करदा कमेटियाँ शहर भर में अवाम की खिदमत का अज़म लिए काम कर रही हैं। G11 के मुतसिल ग्राउंड में ग्रैंड किचन से तकरीबन 1 लाख अफराद के लिए खाना पकाया गया, जो कि मुस्तहिक अफराद के घरों में तकसीम किया गया। ग्रैंड दावत आम किचन में सैकड़ों लोगों ने खाना भी खाया। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से तकरीबन 300 दस्तरख्वान शहर भर में सजाए गए हैं। हमारे पास सर्वे मौजूद है और उन सफ़ेद पोश लोगों का सर्वे है जो कभी घर से बाहर निकल के ना मांगते हैं ना तलब करते हैं, हत्ता कि वो ये तक बताने से भी यानी अवॉइड करते हैं कि हम कुर्बानी नहीं कर रहे। बड़ी मुश्किल से हम ये लोगों से पूछते हैं और फिर हम उन्हें कायल करते हैं। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस हवाले से हकदार तक ये गोश्त पहुंचाने का मैकेनिज़्म बनाया। ईद से पहले हमने प्लानिंग की कि इस बड़ी ईद के मौके पे भी हम लोगों को ईद की खुशियों में शामिल करें और उनको घरों में जाकर हम बाकायदा उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए हम गोश्त पहुँचाएँ। 1 लाख अफराद के लोगों का खाना इंशाल्लाह तैयार करके लोगों के सर्वे की बुनियाद पर डोर स्टॉप पे देंगे इंशाल्लाह। ईद उल अज़हा के मौका पर लोगों को खुशियों में शामिल किया जाए। पूरे शहर के अंदर दस्तरखान सजाए जा रहे हैं। ईद उल अज़हा दस्तरखान से हर खास व आम बंदे को जो है वो बावकार तरीके से बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है। ईद के पहले दिन 50,000 घरानों तक सर्वे की बुनियाद पर घर घर गोश्त पहुँचाया गया। कुर्बानी सब के लिए मुहिम का मकसद सफ़ेद पोश घरानों को ईद कुर्बान की खुशियों में शामिल करना है। ईद उल अज़हा पर जानवर की कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है और कुर्बानी की गोश्त की तकसीम का असूल भी वाज़ेह कर दिया गया है, जिसके मुताबिक गोश्त के 3 हिस्से होने चाहिए। एक हिस्सा घर के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों, जबकि तीसरा मुस्तहिकीन के लिए मुख्तस होना चाहिए। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमे मौसमियात ने 5 जुलाई से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया है। बलूचिस्तान और डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा ज़ाहिर किया गया है, जबकि मुल्क भर के दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफे का इम्कान है। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। 5 जुलाई से बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने बता दिया। एडवाइजरी में कहा कि कोहे सुलेमान से मुंसलिक तमाम दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है, जबकि बारिशों से DIG खान और बलूचिस्तान के नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। सितंबर तक मौसम का जायजा लेते हुए महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बलाई पंजाब, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मामूल से कदरे ज्यादा बारिश होने की तवक्को है। सिंध और बलूचिस्तान के जनूब मगरबी हिस्सों में मानसून के दौरान मामूल से कम बारिशें होने का इम्कान है। सिंध में 17% कम, जबकि बलूचिस्तान में 11% कम बारिशें हो सकती हैं। सिंध में मानसून में मामूल की औसत बारिश 116 मिलीमीटर, जबकि बलूचिस्तान में 52 मिलीमीटर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान भर के बेशतर इलाकों में मानसून के दौरान दर्जा हरारत कदरे मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है, जबकि बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गैर मामूली दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मुतवक्के और मामूल से कदरे ज्यादा बारिश होने के सबब फ्लश फ्लडिंग आने का इम्कान है। बारिश से उन इलाकों में मौजूद आबी ज़खायर और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को भरने में मदद मिलेगी। वस्ती और जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मामूल से कदरे कम बारिश की वजह से कपास की काश्त वाले इलाकों में पानी की कमी का सामना हो सकता है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में गर्म और मरतूब रहेगा। तहम मशरकी पंजाब, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि
नौकुंडी में 47, दालबंदीन 46, नवाब शाह में 43, मोहिंजोदाड़ो में भी 43, जबकि दादू में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।